Good morning, everyone. Today, we are going to discuss the last point of the chapter. Try to understand what do you mean by FDI. Suppose this is India and this is Australia. Any entity, it can be individual, it can be company or anything, entity in Australia invest into real assets into rather India. So we will say it is a FDI for India. And right in this case, Australia is called as home country, home country of the investor, home country of the investor, and India will be called as host country. So investor from home country invest in some other country. He invests into the shares of the entity. यहाँ पे एक entity होगी, right? He will invest, or the company, the entity from the home country, he will invest in the shares, debentures, bonds of the entity in the host country so as to acquire lasting interest. ये investment किस लिए? For the lasting interest, means the interest which will give you control, lasting interest. Try to understand. So when I say this Saint Gobain in one country, leading glass manufacturer in world, Saint Gobain's, they invest into a company. They open their 100% fully owned subsidiary in Pune. So that country invested 100% इस ये जो पुणे की उनकी जो fully owned subsidiary उसमें 100% investment उनकी है. And why they invested in the Pune or in that company? Because right, they want to do business in India. They want to acquire raw material from India. Intention is to control the entity in Pune, control the entity in the host country. The investments made by foreign investors into other country with the intention to acquire lasting interest. Lasting interest means if you acquire more than 10% equity or voting rights, means you are going to control some decisions. So this entity acquires minimum 10% shares of entity in India. So I will say this is FDI, foreign direct investment, more than 10% को बोला जाता है lasting interest. ठीक है? So there is a home country, there is a host country. ठीक है? Home country and host country. There is an entity in the home country, right? It invests into an entity in the host country. ठीक है? So entity in home country invest in the entity of the host country for what purpose? To acquire lasting interest. Lasting interest. Such investments are called as FDI. You invest in the shares of a particular company and उस कंपनी को आप, उस एंटिटी को आप राइट कंट्रोल करना चाहते हो.
उसमें आप डिसीजन लेना चाहते हो, उस टाइप के इन्वेस्टमेंट को एफडीआई बोला जाता है. सो देयर इज, सपोज होस्ट कंट्री के पॉइंट ऑफ से देखा जाए, इट इज एफडीआई. होस्ट होस्ट कंट्री के पॉइंट ऑफ से देखा जाए, इट इज एफडीआई बिकॉज सम फॉरेन इंस्टीट्यूट, foreigner is investing in their country, and that investment is a real investment. Why? Because you are investing in the company, right, with an intention कि वो इंटेंट गुड्स प्रोड्यूस करेगी, आपको एक मार्केट देगी, या आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल करवा के देगी. लाइक यू आर डूइंग बिजनेस ओवर हियर, आप फॉरेन कंट्री में बिजनेस कर रहे हो ऐसे. दिस इज एफडीआई. दूसरा होता है एंटिटी इन द होम कंट्री, इन्वेस्टर दैट इज invest in capital market, capital market of host country. इसका इंटेंशन क्या है, इसने क्यों इसके, सपोज कोई यूएस कंपनी ने इंडिया के कैपिटल मार्केट में पैसे लगाए, क्यों लगाए? बिकॉज दे वांट डिविडेंड, दे मे वांट इंटरेस्ट इफ दे हैव परचेज बॉन्ड्स एंड एवरीथिंग, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह, या दे वांट कैपिटल एप्रिसिएशन. ये लोग क्या करते हैं, दे स्टडी ऑल द कंट्रीज, एंड जहां पे उनको लगता है ग्रोथ ज्यादा है, they will invest in the share securities market of that country. That investment is not with the intention to control the right companies, take the management decision. नहीं, वो जस्ट चलो इस कंपनी में आज पैसे डालते हैं, यहाँ पे इंडिया के कैपिटल मार्केट में पैसे डालते हैं, इस कंपनी में डालते हैं, वहां से क्या मिलेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, पैसा इंक्रीज होगा, राइट. उस इंटेंशन से डाला है उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर or investment. FPI is done not with intention to create real assets, is not interested to target a particular company. No. चलो कल जाके लगता है इंडियन मार्केट उतने अट्रैक्टिव नहीं है, कोई दूसरे मार्केट है, दे विल विड्रॉ द मनी एंड दे विल इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट ऑफ दैट. दिस इज लॉन्ग टर्म, इसलिए बोला है लास्टिंग इंटरेस्ट, दिस इज लॉन्ग टर्म. एंड इसमें क्या होता है, सपोज आपने एक सब्सिडी, यूएस कंपनी ने डिसाइड किया कि इंडिया में एक सब्सिडी ओपन करनी है, मतलब यहाँ पे उनका ऑफिस रहेगा, यहाँ पे दे विल परचेज फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, पूरा स्टाफ वगैरह, ये सब वो इन सब चीजों के लिए इन्वेस्ट करेंगे थ्रू कैपिटल. इक्विटी शेयर्स वो सब्सक्राइब करेंगे, कंपनी को कैपिटल देंगे, एंड विद दैट कैपिटल द कंपनी विल परचेज फिक्स एसेट्स एंड एवरीथिंग एवरीथिंग, और यहाँ पे वो बिजनेस करेंगे. मे बी बिजनेस इज टू प्रोड्यूस, वहां से गुड्स लेके आना और यहाँ पे सेल करना, या यहाँ से रॉ मटेरियल परचेस करना और उनको देना, या यहाँ पे रिसर्च करना, कुछ भी हो सकता है, आउटसोर्सिंग कम कुछ भी हो सकता है. तो उस केस में आपने जो होली ओन सब्सिडी ओपन की है, या आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, नॉट नेसेसरी होली ओन सब्सिडी, इट कैन बी नॉर्मल सब्सिडी और इट कैन नॉट बी इवन सब्सिडरी, देयर इज एसोसिएट कंसेप्ट. सब 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है उसको सब्सिडरी बोला जाता है, 30% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है उसको एसोसिएट बोला जाता है, 30 to 50% किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया उसको एसोसिएट बोला जाता है, आपकी एसोसिएट है, राइट. अगर 50 से ज्यादा इन्वेस्ट किया तो आप उसको सब्सिडरी बोलते हो, 100% इन्वेस्ट किया तो उसको फुल्ली ऑन सब्सिडी बोलते हो. तो आपने मिनिमम 10% अगर डाला है, किसी फॉरेन कंपनी ने इंडिया में, अगर किसी कंपनी में, किसी एंटिटी में 10% से ज्यादा उनके पास वोटिंग पावर है, ऐसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो उसको एफडीआई बोला जाएगा. एंड दैट they have opened the branch, they have opened the subsidiary, they have invested in the existing company. अगर ऐसे है तो उसको बोला जाता है राइट एफडीआई, एंड दैट इज फॉर डूइंग द बिजनेस, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, वो देख के आपको समझ में आएगा. एफडीआई इन इंडिया, दीज आर नॉट इन योर मॉड्यूल, बट समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिए. एफडीआई इन इंडिया रहेगा, देखो दो तीन एग्जाम्पल है that this everybody knows. As far as FDI for Indian startups is concerned, in May 2018, Walmart, right, acquired 77% stake in the Flipkart for, right, almost US dollar 16 million. So Flipkart is an Indian company,
Flipkart is Indian company. Walmart is US company. They are targeting to expand the business into India. Walmart is targeting to expand business into India, retail business, retail chain में. So उन्होंने क्या किया, फ्लिपकार्ट का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट है इंडिया में, तो इंस्टेड ऑफ कमिंग एंड ओपनिंग ए सेपरेट चेन, उन्होंने फ्लिपकार्ट को ही परचेस कर लिया. ऑलमोस्ट 77% उन्होंने ओनरशिप परचेस कर ली. So they invested into Flipkart more than 10%. So Flipkart is operating its business using foreign capital. So I will say जो foreign capital India में आता है, it can be in the form of FDI or FPI. FDI or FPI. FDI में Flipkart will be controlled by the Walmart. Walmart with the intention to create real assets. They have invested into Flipkart. This kind of investment by the foreign player into Indian player is called as FDI. So उसकी वजह से जो भी expansion के लिए फंड चाहिए फ्लिपकार्ट को वगैरह वो अवेलेबल होंगे फ्रॉम द वॉलमार्ट, एंड वॉलमार्ट इज अ ग्लोबल कंपनी, तो उससे उनको फायदा ही होगा. सो राइट, दैट इज कॉल्ड एज FDI. But there are many FIIs, foreign institutional investors. They invest into Indian capital market not to create lasting interest, not to control the company, not to take decisions, but just इंडिया में इन्वेस्ट करने से डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर्स की प्राइस इंक्रीज होगी, कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, फिर सेल करेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे, ट्रेडिंग स्पेकुलेशन के लिए. दैट इज FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. सो इंडिया में फॉरेन कैपिटल दो वे से आता है. इंडिया में या किसी भी होस्ट कंट्री में फॉरेन कैपिटल दो तरीके से आता है. एक FDI के तरीके से आता है एंड दूसरा आता है FPI, foreign portfolio investment. FDI is a more matured. FDI is for a long term. FDI is good for the development of the economy. उसका इम्पैक्ट एक दिन में नहीं दिखेगा, उसका इम्पैक्ट आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिखेगा. FPI is a short term. जब तक कंट्री का कैपिटल मार्केट अच्छा चलेगा तब तक FII will invest into India in the form of FPI. जैसे कैपिटल मार्केट लुढ़कने लगेगा या उनको लगता है यार इससे भी बेटर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, they will withdraw the money and they will invest in that country. FPI is also good for the country but not equally, not at par with the FDI. FDI is more better. Every government seeks more of the FDI because FDI से इंडिया में ओनरशिप होगी, फॉरेन कंपनीज की ओनरशिप होगी, इन्वेस्टमेंट विद द इंटेंशन टू एक्वायर ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल is FDI, investment by the foreigners just for their earning dividend, capital appreciation, interest is FPI. Obviously, right? If FIIs are mutual funds, banks, they are authorized, right? They are registered entities in the abroad who can invest into capital market. ठीक है? So ये दो concept ही हमें समझना है. So अब हम स्लाइड्स पे आते हैं, देखते हैं क्या है. Foreign direct investment. FDI is an investment from a party in one country. Party from one country into business in another country with the intention of establishing a lasting interest. So party from one country investing into business of another country with the intention of establishing lasting interest. Lasting interest मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है lasting interest or lasting control is occurs when acquisition of more than 10% of the shares of the target asset. Thus, FDI involves acquisition of at least 10% of the voting power in an enterprise by foreign investor. Then, और थोड़ा उसको अंदर जाते हैं. FDI is a process in which resident of one country
Suppose resident of USA, that is home country, acquires ownership of the asset, you इन्वेस्ट इन देम, आप उनके कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो तो यू बिकम ओनर, एंड अगर आप ओनर हो तो उनके असेट्स में, राइट, यू विल बी द ओनर. सो resident of one country called as home country, like suppose US, resident of the US, entity from the US, right, home country acquiring ownership into the assets of another country, India, that is called as host country. So when foreigners invest into the business assets of other country, it's called as foreign direct investment. Mercedes coming to India, purchasing land, constructing building, factory, and they're starting, or they are gonna set up the manufacturing unit in India. So अगर ऐसे है, that will be qualified as what? Foreign direct investment, because they are gonna invest into the business. They are gonna control the activities. They are gonna create the assets into India, and that is being financed by the foreigner. Therefore, it is which capital? It is foreign capital, FDI. Such movement of the capital involves ownership. USA, India में capital आ रहा है, suppose, that is called as, that movement of the capital involves ownership, control, and the management of the assets of the host country. ठीक है. सो अभी तक हमने क्या देखा? एक, लास्टिंग इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट. दूसरा है, इट शुड रिजल्ट इन द इन्वेस्टमेंट इन द रियल असेट्स. एंड तीसरा है, राइट, उस इन्वेस्टमेंट के बाद द इन्वेस्टर, विच इज अ फॉरेन इन्वेस्टर, शुड गेट कंट्रोल, ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट, राइट, इन द एंटिटी फ्रॉम द होस्ट कंट्री. ठीक है, आगे. Thus, FDI is a real investment in the factories. Real word को यूज किया, देखो, assets, lands, inventories, etc., and involves foreign ownership of the production facility. Who is the owner? Majority owner belongs to the foreign. Any investment that is made in India, host country हमारे लिए, इस एग्जांपल में host country is India, with the source of funding from outside India, right, is foreign investment. What is the foreign investment? Investment in one country, the source of which is a foreign, right, outside the country, that is foreign investment. The investment that are made by the foreign corporates, foreign nationals, non-resident Indians would fall under the category of the foreign investment. Foreign investment, direct investment. ठीक है? As per IMF, International Monetary Fund Manual, FDI reflects to all. FDI refers to all investments involving long-term relationship. ये short term नहीं है, long term है, lasting interest है, long term चलेगा. And reflecting a lasting interest and control of the resident entity in one country, right? US की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है in an enterprise resident in an economy other than that of the investor company. जो इन्वेस्टर कंपनी वो उसके कंट्री के सिवा किसी दूसरे कंपनी में, दूसरे एंट्री में इन्वेस्ट कर रही है. सो डायग्राम निकाल लेना, राइट. सपोज, राइट, वॉलमार्ट, या यहीं से लिखो, foreign investor. It can be anyone, right? ठीक है. He belongs to which country? Home country. उसके कंट्री को हम इस डेफिनेशन में क्या बोला है? होम कंट्री. इन्वेस्टर फ्रॉम होम कंट्री इन्वेस्ट, राइट, right, into the, right, foreign investor investing, right, in business or entities.
of host country. They belong to different countries. ठीक है? This is to control, manage, to control. क्यों इन्वेस्टमेंट है? To control, manage, right? To control, manage, और तीसरा वर्ड क्या था रे? ओनरशिप. Control, manage, or acquire ownership in that company. Ownership with the intention of lasting interest. And this is investment in the real assets. This leads to investment in real assets. You provide them the capital, and that company, that entity purchases fixed assets. Right? Investment in real assets. So this is Walmart investing in India. I don't know the spelling of Flipkart. आप check कर सकते हो. ठीक है? Let me check. FDI उसका example था. KRT. Okay, cart. ठीक. Flipkart. So when foreign investor invest into, right, some other country, right, with the intention to control, manage, owner, right, to become a owner, with the intention to create lasting interest, the investment result in creation of the real assets or investment in the real asset, उसको बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सो अलग अलग एंगल से आप देख सकते हो, राइट. सो उसको बोला जाएगा फॉरेन डायरेक्ट. एक समझ लेना कि ये इन्वेस्टमेंट टाइम पास के लिए नहीं थी, आज करा और कल निकाल के गए, नहीं, राइट. जब भी एफडीआई आएगा तो, राइट, इट इज फॉर द लॉन्ग टर्म. उन्होंने इंडिया में लाइक इन्वेस्टमेंट किया होगा, राइट, विद द इंटेंशन ऑफ मिनिमम 10, 15, 20, 30 इयर्स की चलो यहाँ पे इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, 20-30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की, उसको ऐसे इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है? अब आगे करते हैं. लेट्स कंटिन्यू. नेक्स्ट. सो राइट, देखो अब क्या लिख रहा है आगे. So FDI is an investment from a party in one country into business in the another country with the intention to create lasting interest. This is one definition. दूसरा, FDI is a process by which resident of one country, that is home country, acquires ownership in the assets of resident of other country, that is host country. जब ये कैपिटल मूव हो रहा है, उसका इंटेंशन क्या है? ओनरशिप गेन करना, कंट्रोल में लेना वो एंटिटी को, एंड उसको मैनेज करना. ठीक है? एंड दिस रिजल्ट्स इन रियल इन्वेस्टमेंट. ठीक है? नहीं. और ये आईएमएफ मैनुअल के कोई डिटेल्स उन्होंने लिखे हैं. व्हाट डू यू मीन बाय, राइट, lasting control means minimum 10% of the investment. Then there are three types of FDIs. There are three types of FDIs: horizontal FDI, vertical FDI, and conglomerate, right, or platform FDI. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ. हॉरिजॉन्टल एफडीआई एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देता हूँ. सपोज ए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रॉम यूएसए, a mobile manufacturer from USA invest into mobile manufacturer in India. Mobile manufacturer in home country invest in the mobile manufacturer in host country. मतलब दोनों का बिजनेस एक्टिविटी सेम ही है. समझ में आ रहा है? ऐसे एफडीआई को, राइट, हॉरिजॉन्टल एफडीआई बोला जाता है. व्हेन फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट
into the entity which does the same activity, right? जो फॉरेन इन्वेस्टर वहां पे कर रहा है वही एक्टिविटी ये इन्वेस्टी होस्ट कंट्री में कर रहा है. अनदर एग्जांपल, सपोज, राइट, टेलीकॉम ऑपरेटर in UK investing telecom operator in India. यूएस में जो टेलीकॉम ऑपरेटर है, ही इज इन्वेस्टिंग इनटू इंडिया. राइट, कौन से सेम एक्टिविटी में, राइट, टेलीकॉम ऑपरेटर में इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर ऐसे है तो ऐसे टाइप को एफडीआई को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एफडीआई. सो देखो हॉरिजॉन्टल एफडीआई का मतलब क्या. एफडीआई इन द सेम इंडस्ट्री अब्रॉड, एफडीआई इन द सेम इंडस्ट्री abroad as the investor operates in his home country. When a firm replicates its home country based business activities, right, in the same value chain. होम कंट्री में इन्वेस्टर जो काम कर रहा है वही काम वो होस्ट कंट्री में भी कर रहा है. मोबाइल ऑपरेटर है होम कंट्री में, इंडिया में भी वो मोबाइल ऑपरेट कर रहा है, राइट. टेलीकॉम ऑपरेटर इन होस्ट कंट्री इज इन्वेस्टिंग इन द टेलीकॉम operations in the right host country. दोनों जगह पे एक्टिविटी सेम है, so his investment in the same field, same activity, such investment is called as horizontal FDI. दूसरा होता है वर्टिकल एफडीआई. लाइक एग्जांपल, डच मोबाइल कंपनी इन्वेस्टिंग इन द मोबाइल कंपनी इन इंडिया. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल एफडीआई. सेम सेगमेंट में सेम activities में investment is a horizontal expansion. Horizontal expansion means investing, expanding in the same field. दूसरा था vertical FDI. Vertical FDI का मतलब क्या, ध्यान देना. एग्जाम्पल, एक ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रॉम जर्मनी, जर्मन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और इन्वेस्टिंग इनटू a company in India, who procures raw material from them. Raw material from them. Raw material for them. From them, for them. So, suppose German company wants raw material to purchase, to manufacture the glasses and to sell the glasses. तो raw material purchase करने के लिए, right, in Germany they are manufacturing what? They are manufacturing glasses. In India, they are acquiring raw material. They are not manufacturing glasses. They are acquiring raw material. So they are purchasing raw material and selling it to the German company. मतलब आपका जो बिजनेस है या तो उसके रॉ मटेरियल वगैरह एक्वायर करना या आउटपुट सेल करना, अगर ऐसे आप बिजनेस कर रहे हो उसमें इन्वेस्ट है, राइट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसको लाइक वर्टिकल एफडीआई बोला जाता है. example another example I can give you, like there is a company, suppose example Mercedes Benz manufactures vehicles abroad and invest in some company in India, not for the manufacturing, some company in India, not for the purpose of manufacturing, right, but just to make it, right, as a selling agent. मतलब there is a Mercedes Benz in suppose USA, they have invested into India in a company which will look after the sale of the Mercedes Benz in India. They are not going to produce Mercedes Benz, they are going to sell Mercedes Benz for the company, the investor with a foreign investor. So या तो आप जो होस्ट होम कंट्री में जो एक्टिविटी कर रहे हो उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना,
या ये जो एक्टिविटी हो रही है उससे जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं वो सेल करना, अगर ये एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको बोला जाता है विच, राइट, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल एफडीआई. देखो वर्टिकल एफडीआई में लिखते हैं एफडीआई इन द रिलेटेड इंडस्ट्री, सेम इंडस्ट्री एंड रिलेटेड इंडस्ट्री. एफडीआई इन द सेम इंडस्ट्री अब्रॉड, सेम इंडस्ट्री अब्रॉड मतलब सेम काम वहां पे भी करने वाले, यहाँ पे रिलेटेड काम करने वाले, ठीक है. एफडीआई इन द रिलेटेड इंडस्ट्री अब्रॉड which provides raw material, inputs, services to the investor's business in the home country. Right? Moves upstream or downstream in the varied value chain. मतलब या तो आप रॉ मटेरियल परचेस करोगे उनके लिए, या उन्हें जो गुड्स प्रोड्यूस किए वो सेल करोगे. आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आप उनके प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, या उन्होंने जो गुड्स प्रोड्यूस किए वो सेल कर रहे हो, उसके लिए मार्केट टैप कर रहे हो. अगर ऐसे किसी कंट्री में, ऐसे किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो आउटसाइड योर कंट्री, दैट इज वर्टिकल एफडीआई. एग्जांपल, पब्लिशर ऑफ बुक्स बेस्ड इन यूरोप. यूरोप में एक पब्लिशर है, राइट, acquiring printing facilities or firms in USA. He is acquiring, investing in the printing companies, printing firms. So he is a publisher. वो publish करने की एक्टिविटी है, बट बुक्स पब्लिश करने के लिए पहले बुक्स प्रिंट करने होंगे, तो वो प्रिंटिंग फर्म्स को परचेस कर रहा है, एक्वायर कर रहा है. सो दैट इज रॉ मटेरियल एक्वायर कर रहा है, ऐसे बोलने को चलेगा. या जो गुड्स बनाने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए जो चीजें चाहिए उनमें वो इन्वेस्ट कर रहा है. सो या तो आप अपवर्ड या डाउनवर्ड, आप राइट रिलेटेड इंडस्ट्री में, राइट, अपवर्ड या डाउनवर्ड आप इन्वेस्ट कर रहे हो. देन कॉन्ग्लोमरेट और प्लेटफॉर्म एफडीआई. एग्जांपल, फेसबुक इन्वेस्टिंग इन रिलायंस जियो. Facebook investing in Reliance Jio. Facebook is into other operations. Reliance Jio is into other operations. But Facebook has invested into Reliance Jio. That kind of FDI is platform FDI, जहाँ पे दोनों के activities are unrelated. दोनों के activities कोई भी related नहीं, right? FDI in a business that is unrelated to the investors' existing business in the home country. Swiss dairy investing in the telecom sector abroad. Dairy and telecom sectors are unrelated. ना ही आप कोई रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, या आपके प्रोडक्ट सेल करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ना ही आप किसी डेयरी में इन्वेस्ट कर रहे हो. यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग वेरी डिफरेंट देन योर ओन बिजनेस. सो उसको बोला जाता है कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई और प्लेटफॉर्म एफडीआई. बहुत सिंपल है. एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ध्यान देना. Mercedes-Benz investing, suppose, right, Mercedes-Benz is investing in a company which will manufacture Mercedes-Benz in India. Try to understand. Mercedes-Benz is planning to start production activity in India. वो बोलते हैं हम यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे पुणे में, ऑटोमोबाइल हब में. And therefore they have decided to invest in the Chakan. Mercedes-Benz have decided to invest into a company in a Chakan. Maybe they have decided to open a wholly owned subsidiary or just a subsidiary, या कोई ऑलरेडी इन्वेस्टर है उसको एक्वायर करने वाले, पहले कोई कंपनी उसको एक्वायर करने वाले. एंड व्हाट इज द पर्पस? टू मैन्युफैक्चर मर्सिडीज बेंज इन इंडिया. एंड यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा, यहाँ पे ही सेल किया जाएगा. सो टू अवॉइड कस्टम ड्यूटी एंड एवरीथिंग, राइट. कस्टम ड्यूटी की वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं. सो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे और इंडिया में ही सेल करेंगे, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते बेटे. तो उसके लिए उन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है इन इंडिया. दैट काइंड ऑफ एफडीआई इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल एफडीआई, बिकॉज जो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी करने वाले, सेम एक्टिविटी वो होस्ट कंट्री में भी, इंडिया में भी करने वाले. सो इन्वेस्टर जो होम कंट्री से बिलोंग कर रहा है, ही इन्वेस्ट इन द सेम एक्टिविटीज इन द सम अदर एंटिटी इन द होस्ट कंट्री. दोनों की एक्टिविटीज सेम है, हॉरिजॉन्टल एफडीआई. दूसरा, Mercedes-Benz investing. Mercedes-Benz is investing in a company which will procure raw material for the Mercedes-Benz, or it will sell the cars of vehicles of the Mercedes-Benz.
So that investor from the host country is investing into entity in a host country, and that entity is not into the same activity. It is related activity like procurement of the raw material, or right, selling the goods and services produced by the investor from the right होम कंट्री. अगर ऐसे है तो उस काइंड ऑफ एफडीआई को बोला जाता है वर्टिकल एफडीआई. एंड थर्ड एग्जांपल इज लाइक मैंने रिलायंस इन्वेस्टिंग इन राइट सॉरी जियो, फेसबुक इन्वेस्टिंग इनटू जियो. एक्चुअली उनकी एक्टिविटीज पूरे अलग है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जियो इज लाइक प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज एंड फेसबुक इज सोशल प्लेटफॉर्म, लाइक इट इज ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. सो दोनों का काम पूरा अलग है. बट राइट स्टिल फेसबुक इन्वेस्टिंग इनटू रिलायंस, दे आर अनरिलेटेड एक्टिविटीज. तो आप उसको बोल सकते हो कॉन्ग्लोमेरेट और प्लेटफॉर्म एफडीआई. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज गिवन इन द मॉड्यूल. सो ये मॉड्यूल का है तो आपको पता होना चाहिए. एफडीआई मतलब क्या? व्हेन इन्वेस्टर फ्रॉम वन कंट्री इन्वेस्ट इनटू एंटिटी फ्रॉम अनदर कंट्री with the intention of creating long lasting interest, with the intention to manage that entity, to own that entity, to control that entity, right? Such kind of investments are the FDIs. Second, there are three types of FDIs. एक horizontal FDI, मतलब सेम एक्टिविटी में FDI करना, राइट. वर्टिकल FDI मतलब रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वेस्ट करना. एंड थर्ड कॉन्ग्लोमेरेट और प्लेटफॉर्म FDI मतलब अनरिलेटेड एक्टिविटी में इन्वेस्ट करना. सो दैट इज कॉल्ड एज राइट. सपोज एग्जांपल साइरस पूनावाला, right? They are manufacturing, right, that COVID-19 uh, vaccine, COVID-19 vaccine, बराबर ना? And you are thinking कि next 3-4 years में sale of Cyber Poonawalla will increase. It is a private limited company, it is not public limited company. Shares are not available, right? वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर योर इंफॉर्मेशन. बट सपोज ऐसे पकड़ के चलो, राइट, कि उसके शेयर्स आप परचेस कर सकते हो, या चलो प्राइवेट लिमिटेड है, एंड आपको लगता है कि इवन साइरस पूनावाला वांट्स मोर एंड मोर ऑफ कैपिटल, बिकॉज उसको लग रहा है कि 2-3 साल में बहुत कैपिटल लगने वाला है, बहुत सेल होने वाला है, बहुत प्रोडक्शन करना पड़ेगा. एंड सपोज गूगल थिंक्स फिट टू इन्वेस्ट इनटू साइरस पूनावाला. गूगल एंड साइरस पूनावाला का बिजनेस पूरा अलग है. साइरस पूनावाला इज मोर फेमस फॉर द रेस कोर्स, but they are also into like manufacturing the like medicines and vaccines. तो उसके लिए भी है. तो नाउ गूगल इज इन्वेस्टिंग इनटू दैट. क्यों? बिकॉज इन ये कंपनी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, एंड इनमें इन्वेस्ट करने से उनका फायदा होने वाला है. एंड दे वांट टू कंट्रोल दैट. दे आल्सो वांट टू बी ओनर. दे वांट टू कंट्रोल, मैनेज दैट. अगर ऐसे टाइप की इन्वेस्टमेंट है, राइट, तो वो गूगल इज इनटू सर्च इंजिन, इज अ सर्च इंजिन, एंड दे आर इनटू फार्मास्यूटिकल्स. सो दो पूरे दोनों के बिजनेसेस अलग अलग है, बट गूगल वांट्स टू इन्वेस्ट, राइट, एंड दैट देयर इंटरेस्ट इज द लास्टिंग इंटरेस्ट. तो ऐसे टाइप को इन्वेस्टमेंट को बोला जाएगा कॉन्ग्लोमेरेट, प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म एफडीआई. एग्जांपल दूसरा मैं देता हूँ. केकेआर, पता है ना आपको? केकेआर हैज ए टीम इन वेस्ट इंडीज एज वेल. जैसे इन इंडिया में आईपीएल में उनकी टीम है केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स. सेम ओनर्स की जो भी उनकी एंटिटी है, शाहरुख खान एंड अदर्स, राइट, उन्होंने जैसे केकेआर परचेस किए, वैसे उसी कंपनी ने, राइट, वेस्ट इंडीज में भी उनका कुछ प्रीमियर लीग है, उसमें उनकी एक टीम है. सो दैट कंपनी हैज इन्वेस्टेड इनटू वेस्ट इंडीज. तो वेस्ट इंडीज के लिए वो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है. एंड उस एफडीआई को आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल एफडीआई, बिकॉज जो वो कंपनी यहाँ पे जो इन्वेस्ट कर रही है, जिसमें इन्वेस्ट है क्रिकेट टीम, फ्रेंचाइजी परचेस करना, वही वहां पे भी वो काम कर रहे हैं. सो दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हॉरिजॉन्टल एफडीआई. सो ऐसे समझ में आना चाहिए. नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल एफडीआई, सेम इंडस्ट्री अब्रॉड. वर्टिकल एफडीआई, रिलेटेड इंडस्ट्री अब्रॉड. कॉन्ग्लोमेरेट और प्लेटफॉर्म, राइट, अनरिलेटेड इंडस्ट्री अब्रॉड, अनरिलेटेड. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई, मैंने बोला कि आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ना कि रियल एसेट में. ठीक है. अच्छा,
देखो क्या लिखा है, FPI is a process in which resident of one country, home country, acquires ownership of financial assets and securities in another country, that is the host country. ठीक है, intention is not to create, right, right, intention is not to create long lasting investment. इंटेंशन है कि चलो मार्केट अच्छा चल रहा है तो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, पैसा कमाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस फॉरेन इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग टू कैपिटल ओनली, वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है उस कंपनी के, उनके डिबेंचर सब्सक्राइब कर रहा है, उनके बॉन्ड सब्सक्राइब कर रहा है। तो आप बोलोगे सर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है, मैं मान रहा हूँ कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है, हाउएवर द इन्वेस्टमेंट इज टू गेन द कंट्रोल, ओनरशिप, मैनेज द बिजनेस, लॉन्ग लास्टिंग इंटरेस्ट है, लास्टिंग इंटरेस्ट है। सो ऐसे टाइप की इन्वेस्टमेंट इनटू द शेयर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी इज, राइट। जनरली इस केस में क्या होता है, ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है ना, वो क्या कैपिटल मार्केट पे से भी वो क्या NSE और BSE पे शेयर्स नहीं परचेस करेगा, वो डायरेक्टली इस कंपनी के कांटेक्ट में आएगा और बोलेगा कि आई वांट टू इन्वेस्ट इनटू यू, इफ यू आर हैप्पी आई विल इन्वेस्ट। तो इन दोनों का डिस्कशन होगा, एंड नाउ दिस कंपनी विल इशू शेयर्स टू दिस कंपनी, या एग्जिस्टिंग शेयर्स, प्रमोटर जो रहेंगे ना इस कंपनी के, दे मे सेल देयर स्टेक टू फॉरेन इन्वेस्टर, और दे विल इशू मोर शेयर so that foreign investor can purchase. Generally foreign investor does not purchase in the secondary market. उस केस में आप ये मत बोलो कि he will purchase on NSE, right, और BSE, वहां पे नहीं होगा, ये इन दोनों के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा और वहां पे वो परचेस सेल होगा, बिकॉज ही नोज, राइट, द होस्ट कंट्री की एंटिटी नोज कि हमें इन्वेस्ट करने वाला है फॉर लॉन्ग टर्म। जैसे प्रॉपर लाइक जब वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट, उनका ऑलमोस्ट 6-7 मंथ से डीलिंग चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो यू नो कि आप में कौन इन्वेस्ट कर रहा है, एंड हम किसको हमारे शेयर्स इशू करें या सेल करें, प्रमोटर्स वगैरह सबको पता होता है, राइट। एंड दूसरा होता है कि ये लोग आएंगे इन्वेस्ट करेंगे, नॉट मोर देन 10%, राइट, दे विल जस्ट परचेस एंड दे विल कीप ऑन सेलिंग द शेयर्स, स्पेकुलेट करते रहेंगे, दे आर, राइट। इनमें क्या, यू डोंट मीट विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, आप डायरेक्टली शेयर्स परचेस करते हो NSE BSE पे, राइट, एंड फिर आप वहां पे सेल भी करते हो, यू स्पेकुलेट, तो आप ट्रेडिंग करते हो इन शेयर्स में। आगे देखो क्या लिखा, FPI is a process in which resident of one country acquires ownership of not real assets but financial assets or securities in another country, host country. Purchase of securities, shares, stock, bonds of the companies, government bonds, etc., by a foreign investor in Indian securities market. Intention is not to do the business. Intention is not to control the business. ये समझ लेना, ठीक है। जैसे यू परचेज द शेयर्स ऑफ द रिलायंस, आपका इंटेंशन उसको कंट्रोल करना नहीं है, शेयर्स की प्राइस इंक्रीज होगी, हम सेल करेंगे, वो इंटेंशन क्या है कि कैपिटल अप्रिसिएशन, डिविडेंड मिलेगा, लाइक दैट। सो इस इंटेंशन के साथ जो इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडियन कैपिटल मार्केट और इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट, उसको बोला जाता है FPI, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं। देन features, FPI focuses only on obtaining adequate return on the financial capital by way of dividends, interest, and capital appreciation. Portfolio capital moves to recipient country, that is host country. Recipient country matlab host country, right? Which has revealed its potential for the higher returns and profitability. अगर US investors को लगता है कि Indian capital market will give them returns, will give them profit, they will invest into Indian capital market. अगर उनको लगता है कि नहीं नहीं इंडिया का कैपिटल मार्केट से बेटर कोई दूसरा कैपिटल मार्केट है, they will remove the investment from India and they will invest into the capital market of that other country. So it keeps on fluctuating. Portfolio capital moves to the recipient or host country which has revealed its potential for higher returns and profitability. Investors may often shift their capital in case of changes in these prospects. वो पैसे इजीली डालते भी है
इजीली निकाल भी सकते हैं। FPI investors do not have any intention of exercising voting power or controlling or managing the affairs of the company in whose securities they are investing. Generally, voting share, right, is less than 10%. Their investment is generally less than 10%. FPI is done mainly by individuals and institutions through the mechanism of capital market. आप capital market में invest करते हो, you don't interact with the owners of the company वगैरह, आप directly capital market में, आपको लगता है रिलायंस के शेयर इंक्रीज होने वाले, you invest into the Reliance shares. कोई फॉरेनर रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट करता है, राइट? बट अगर वही जब फेसबुक में रिलायंस में इन्वेस्ट किए तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिस्कशन हुआ होगा कि व्हाई दे वांट टू इन्वेस्ट, राइट, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट द कंपनीज, राइट, ये कितने में कैसे इशू करने वाले, राइट, एग्जिस्टिंग शेयर सेल करने वाले, क्या उनको अलग से शेयर इशू करने वाले, लाइक दैट। तो वो प्रॉपर डिस्कशन होता है किस रेट पे, राइट, शेयर इशू करने हैं, राइट, सब चीजें डिस्कस होगी एफडीआई में। एफपीआई में जो भी मार्केट में रेट चल रहा है उस रेट पे आप परचेस करोगे, यू वोंट इंटरेक्ट विद द कंपनी, आप डायरेक्टली शेयर्स परचेस करोगे। आगे, एफपीआई इज डन मेनली बाय द इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ कैपिटल मार्केट। एफपीआई हैज इमीडिएट इंपैक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बिकॉज अगर एफपीआई होता है तो इनफ्लो होगा, फॉरेन कैपिटल विल कम इनटू पिक्चर, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स विल इंक्रीज। बट अगर वो लेके जाएंगे तो, right, there will be outflow of the foreign capital or foreign currencies and balance of payment will increase। जब पैसा अंदर आएगा इंडिया में, right, so inflows will increase and BOP, difference between import and export, right, foreign currency inflows and foreign currency outflows will decrease। but अगर वो लेके जाएंगे पैसा तो that will increase, right, so it has direct impact, immediate impact। एफडीआई में इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं दिखता, एफडीआई इज फॉर लॉन्ग टर्म, धीरे धीरे आपको दिखेगा इकोनॉमी ग्रो हो रही है एफडीआई की वजह से। एफडीआई की इज लाइक बलून, जल्दी फूक जाता है, राइट, और फुटता भी है। एफपीआई हैज इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट rather than production or generation of income। FDI has an impact on the production and income generation in the country। FPI has an impact on BOP and exchange rates। FPI होते कैसे? Foreign institutional investors are the large groups, are large foreign groups with substantial investable funds like mutual funds abroad, banks abroad, insurance companies abroad. They have like large amount of investable funds, insurance companies, right? Foreign insurance companies, foreign banks, foreign mutual funds, right? इनके पास बहुत सारा पैसा होता है, and they, if they invest that money into Indian capital market, right, that is FPI। FIIs are registered abroad, they are registered, they are registered entities abroad with a view to investing in other nations, right, with a view to investing in other nations to invest in equity, hedge funds, pension funds, mutual funds, etc. So they are registered, they are registered in that country and they invest in other countries in capital market। Foreign institutional investors have strong research team which speculate to invest in a country with a possibility of the strong return in the equity market। उनकी टीम रहेगी, लाइक म्यूचुअल फंड्स के एक्सपर्ट्स रहते हैं, दे डिसाइड कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, कहाँ पे रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। सिमिलरली एफआईआईज में एक्सपर्ट्स रहेंगे, राइट, एक एक्सपर्ट टीम, और वो डिसाइड करेंगे कौन सी कंट्री में रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। जिस कंट्री में रिटर्न ज्यादा मिलेंगे, राइट, उस कंट्री के कैपिटल मार्केट में वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, so FIIs have a strong research team which speculate to invest in a country with a possibility of the strong return in the equity market। So these FIIs like park their funds to fuel a bullish market, मतलब जहां पे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे। बुलिश मार्केट मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है उसको बुलिश बोलते हैं, जब मार्केट नीचे गिरता है उसको बेयरिश बोलते हैं। ठीक है, नीचे गिरना मतलब बेयरिश, ऊपर जाना मतलब बुलिश। So and also engage in the speculation activities।
वो प्रॉपर ट्रेडिंग करते हैं, सिंपल वर्ड्स, ट्रेडर्स. FIIs bring huge investments, yes, but there is also risk that they may leave the nation after offloading their portfolios. Offloading means selling. वो इन्वेस्ट भी करेंगे और सेल भी करेंगे. It is not long term. Hence, government looks for sustainable FDI investment over FII investment. So government prefers more of FDI over FIIs because FIIs are risky. पैसे आएंगे भी और जाएंगे भी. लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे इसकी गारंटी नहीं. बट FDI will help in income generation. FDI will help in production. इसलिए FDIs are more important than the FPIs. ठीक है. तो ये था ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन FDI वर्सेस FPI. ठीक है. यहाँ पे मैंने वही टेबल फॉर्म में दिया, ध्यान देना. रियल वर्सेस नॉमिनल इन्वेस्टमेंट. FDI constitutes investment in the real capital. FPI constitutes investment in the nominal capital. मतलब रियल कैपिटल मतलब द कैपिटल, वो जो पैसे देंगे ना, जो इन्वेस्ट करेंगे, उस मनी से रियल कैपिटल परचेस होगा. मतलब फिक्स असेट्स, राइट, गुडविल, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा परचेस किए जाएंगे. So it is investment into real capital and it is a invest nominal capital. मतलब वो क्या डायरेक्टली ये सेकेंडरी मार्केट में जनरली ज्यादा होगा, राइट. ट्रेडर टू ट्रेडर इन्वेस्टमेंट, राइट, परचेस सेल होगा, नॉमिनल. देन टाइप्स ऑफ एसेट क्रिएटेड. इट क्रिएट्स रियल एसेट, फिजिकल एसेट्स, फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन फैसिलिटीज, एंड यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स बनते हैं, इनटू ब्रैकेट रियल एसेट्स, प्रोडक्टिव एसेट्स, राइट. यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स, securities, financial stocks, bonds, and other financial instruments. Productive capacity. FDI creates or uh, like are right, FDIs help in producing goods and services. Increase the productive capacity of the country in which investment takes place. Right. So they increase the productive capacity. They do not increase the productive capacity. ठीक है. Because वो real investment नहीं है, वो nominal investment है. Technology. Does transfer of the technology results in, right, often accompanied by transfer of technology, support and collaboration to ensure better output. जब मर्सिडीज बेंज इंडिया में इन्वेस्ट करेगी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, तो दे विल आल्सो ट्रांसफर देयर टेक्नोलॉजी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो दे विल ट्रांसफर देयर राइट्स, दे विल ट्रांसफर देयर टेक्नोलॉजी, राइट, सपोर्ट, कोलैबोरेशन, सब चीजें वो वहां पे जो करते ना, रिप्लिका करेंगे इंडिया में. सो इंडिया में टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी. So जब भी FDI होगा, it will be right accompanied by technology transfer, support and collaboration to ensure better output. यहाँ पे वैसे कुछ नहीं. There is no concept of transfer technology or support in this case. Then, like bullet train में, right, Japanese government has invested into India. They have transferred the technology to the FDI. Then, FDI and FPI continue. National income of a target कंट्री. एफडीआई की वजह से नेशनल इनकम इंक्रीज होगा टारगेटेड कंट्री का. इंक्रीज इन द आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, वेज लेवल एक्सेट्रा ऑफ द कंट्री इन विच इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस. नो इंक्रीज इन द आउटपुट एक्सेट्रा, राइट, बिकॉज आप नॉमिनल कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हो. इमीडिएट इम्पैक्ट. एफडीआई डू नॉट लाइक इमीडिएट इम्पैक्ट, राइट. ओ यहाँ पे उल्टा हुआ है. ठीक है, क्या है ध्यान देना. Immediate impact. FDI has an immediate impact more on the production and income generation for the in. अच्छा ठीक है, ठीक है, right. You can say अच्छा for the investor लिखा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, right. FDI का impact more on the balance of payment and exchange rate of the country, host country, and यहाँ पे more on the production and the income generation for the investor only. मतलब जिसने इन्वेस्ट किया उसकी इनकम मिलेगी, उसको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, उसको डिविडेंड मिलेगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा. इन्वेस्टर का फायदा है, इसमें इन्वेस्टी का फायदा है. इन्वेस्टी आल्सो गेट्स बेनिफिटेड.
इन्वेस्टी ऑल्सो बेनिफिटेड, मतलब यूएस कंपनी तो बेनिफिट होगा और इंडियन कंपनी है, इंडियन लाइक इंडिया को भी उसका बेनिफिट होगा, लाइक दैट। आगे नेक्स्ट, मेन इंटेंशन बिजनेस मोटिव, यू वांट टू डू बिजनेस, रिसोर्स सीकिंग, रिसोर्स प्रोक्योर करने, इनपुट्स, मार्केट सीकिंग, आउटपुट सेल करना है, यू आर टारगेटिंग कस्टमर्स, या तो आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हो, रिसोर्स ले रहे हो, या जो आउटपुट आपने बनाया है वहां पे यहाँ पे सेल कर रहे हो। टेक्नोलॉजी सीकिंग मोटिव, या यू वांट टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा सपोर्ट। यहाँ पे इंटेंशन क्या है, रिटर्न कमाना, प्रॉफिट कमाना, राइट। रिटर्न ऑन फाइनेंशियल कैपिटल्स बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड कैपिटल अप्रिसिएशन। Voting shares held generally less than 10%, generally less than, greater than 10%, less than 10%. Control and management, right? FDI takes place for the lasting interest and control, no interest in the management or control. ठीक है? Nature of interest, long term, short term. Influence, significant degree of influence by investor on the management of the investing enterprise or acquired enterprise. यहाँ पे वैसे कुछ नहीं, purely financial investment, no significant degree of influence on the right entity's management. Speculative in the nature, no, it's not speculative, not intended for speculative, and this is purely speculative. These are the differences between FDI and FPI. Both are good for the economy, obviously, both are good, but मैं उसमें भी बोल रहा हूँ FDI, because देखो ना, रियल कैपिटल में इन्वेस्ट हो रहा है, रियल असेट्स में इन्वेस्ट हो रहा है, इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, राइट। मतलब यहाँ पे जो कंपनीज है, लाइक जो होस्ट हमारे इधर की जो कंपनीज है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी, बिकॉज दे विल गिव मनी, दे विल गिव द टेक्नोलॉजी सपोर्ट, कोलैबोरेशंस रहेंगे, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द होस्ट कंट्री विल इंक्रीज और एंटिटीज फ्रॉम द होस्ट कंट्री विल इंक्रीज, कंपटीशन इंक्रीज होगी, राइट। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, राइट। इंडिया कंपेयर टू अदर्स, राइट, जहाँ पे लाइक एडवांस टेक्नोलॉजी, वो एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी, राइट। राइट, नेशनल इनकम ऑफ ए टारगेट कंट्री, एफडीआई की वजह से नेशनल इनकम इंक्रीज होता है, बिकॉज इफ यू रिमेंबर इन योर 12th चैप्टर, नेशनल इनकम में purchase and sale of the shares does not included in the national income because it is resale. Purchase and sale of the shares do not constitute into the calculation of the national interest. तो ये purchase and sale of shares है, trading है, but FDI में you are investing into the real assets, so that will right results in increase in right national income. Then immediate impact, main intention business करना और यहाँ पे return on capital, voting more than 10%, less than 10%, control, yes you want to control, right, long lasting control चाहिए आपको, यहाँ पे you are not interested, right. FDI, right, nature of interest long term, FPI short term, influence, right, you influence the management, यहाँ पे you are not bothered about the management. Speculative, no, FDI is not speculative, FPI is a purely speculative. तो ऐसे दो टाइप्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है, FDI वर्सेस FPI, अब क्लियर हुआ होगा। नाउ इंडिया में FDI करना है, तो अभी अब कोई भी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज FDI एंड व्हाट इज FPI, ये हमने देखा, कोई भी कंट्री हो, राइट। अभी हमें इंडिया के पॉइंट से देखा था, तो जल्दी समझ में आएगा, राइट। कोई भी कंट्री के पॉइंट से देखो FDI, अगर इन्फोसिस invest, Infosys starts a subsidiary in US, it is a FDI for US, try to understand, right। So because वहां पे Infosys gonna invest into real assets, so वो उनके लिए FDI होगी। Then FDI in India, there are two ways by which FDI comes into India। देखो क्या लिखा है, FDI has been crucial driver of the right Indian economy's growth and a major source of non-debt financial resource। मतलब लोन, एंटिटीज को लोन लेने की जरूरत नहीं है, कैपिटल ही आ जाएगा, इक्विटी कैपिटल आ जाएगा, समझ में आ रहा है, दे विल इन्वेस्ट इनटू इक्विटी कैपिटल, सो इट इज नॉन डेट, मतलब यू आर नॉट सपोज टू टेक द लोन फ्रॉम द बैंक्स, राइट, वो इन्वेस्ट करेंगे, डायरेक्टली कैपिटल दे देंगे आप, आफ्टर
the liberalization of the economy, India has been one of the highest recipient countries for the FDI globally and is one of the top 10 most preferred investment destinations of the world. So yes, because India is a developing country, India has a future, and therefore there are many MNCs who are investing, who are coming into India, who are investing into India in the form of FDI. Routes for FDI in India: automatic route and approval route. If you have to do investment into India, FDI करनी इंडिया में, तो आपको या तो गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद करनी होती है या ऑटोमेटिक रूट है। तो गवर्नमेंट ने वो डिसाइड किया है कहाँ पे गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं और कहाँ पे गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है। सो देयर आर टू रूट्स बाय व्हिच दैट एफडीआई कम्स इनटू इंडिया। ऑटोमेटिक रूट में क्या लिखा है? दैट इज विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट और आरबीआई। अगर कोई कंपनी, फॉरेन कंपनी इंडिया में एफडीआई करती है एंड जिस सेक्टर में वो एफडीआई कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए राइट ऑटोमेटिक रूट है। मतलब उनको गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं, आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं। दे कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मैनेजमेंट ऑफ दैट कंपनी एंड वहां पे इन्वेस्ट कर देंगे। एज सिंपल एज नो नीड ऑफ अप्रूवल, उसको बोला जाता है ऑटोमेटिक रूट। एंड दूसरा होता है अप्रूवल रूट। दूसरा होता है अप्रूवल रूट, मतलब बिफोर यू इन्वेस्ट इनटू इंडिया यू हैव टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। सो विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट के पहले देयर वाज अ बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड मतलब क्या होता था कि जिसको एफडीआई करना है, इंडिया में इन्वेस्ट करना है इनटू बिजनेसेस, तो उनको ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को एप्लीकेशन देनी होती थी। फिर वो कंसर्न मिनिस्ट्री को भेजते थे, फिर वो कंसर्न मिनिस्ट्री उस पर डिस्कशन करती थी और फिर अप्रूवल देना है नहीं देना उस पर डिस्कशन होता था। दिस इज वेरी लेंथी प्रोसेस। तो मोदी गवर्नमेंट ने ये टाइम रिड्यूस किया, उन्होंने वो बोर्ड को ही बंद कर दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड निकाल दो, डायरेक्टली मिनिस्ट्री को आप अप्लाई करो। आप क्या करने वाले थे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन दोगे, बोलोगे कि हमें एफडीआई करना है, हमें अप्रूवल दो, हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इतने इतने शेयर इन्वेस्ट करना है, 23%, 10%, 76%, जो भी है, इतना हम इन्वेस्ट करने चाहते हैं, 100% करना चाहते हैं, जो भी है, उनको एप्लीकेशन दे दो। वो कंसर्न मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करेंगे, कंसर्न मिनिस्ट्री फिर डिसीजन लेगी। तो उन्होंने एक जो बीच वाला था ना उसको निकाल ही दिया, डायरेक्टली गो टू द कंसर्न मिनिस्ट्री, तो टाइम कम लगेगा। बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स मोर एंड मोर एफडीआई इनटू इंडिया। उनको अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो दैट इज नॉट गुड। तो राइट, वो है ना कि कम लाइक मेक इन इंडिया जो कंसेप्ट है, राइट, उसको प्रमोट कर रहे हैं ना, तो उसके लिए टाइम ऐसे प्रोसेस इजी होनी चाहिए। तो उन्होंने जो बोर्ड था ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, उसको निकाल दिया। तो नाउ डायरेक्टली गो टू द गवर्नमेंट, कंसर्न गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, वहां पे अप्लाई करो, इफ दे अप्रूव यू कैन इन्वेस्ट। बट ऑब्वियसली उसके पहले आपकी बात होती है उन कंपनीज की जहां पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। एंड फिर सब चीजें फाइनलाइज होने के बाद यू अप्लाई टू द गवर्नमेंट एंड फिर गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देगी और देन यू कैन मेक द इन्वेस्टमेंट। सो देयर आर टू रूट्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया: ऑटोमेटिक रूट जिसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं, एंड देयर आर सम प्रायर अप्रूवल रूट, दैट इज अप्रूवल रूट। एफडीआई इन इंडिया देखो क्या लिखा है: एफडीआई कैन be obtained through issue of FDI compliant instruments, namely equity shares, fully and mandatory convertible preference shares and debentures, partly paid equity shares, and share warrants issued in accordance with the Companies Act 2013 and SEBI guidelines as applicable. Now, FB wants to invest into Jio, तो ये सेकेंडरी मार्केट एनएससी और बीएससी पे तो शेयर्स नहीं लेंगे, जियो विल इशू देम शेयर्स, राइट, एज पर कंपनीज एक्ट एंड सेबी गाइडलाइंस। तो इसको जियो को कैपिटल मिल जाएगा एंड दे विल इन्वेस्ट। सो दैट इज एफडीआई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दे विल इशू शेयर्स, डिबेंचर्स, राइट, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो भी उनमें डील हुई होगी इन दोनों के बीच में। सो स्पेसिफिकली खाली इनको शेयर्स इशू किए जाएंगे, बाकी किसको नहीं, जियो एफबी को। एंड देन एफबी विल इन्वेस्ट एंड विल गिव मनी टू द जियो एंड जियो विल यूज दैट टू एक्सपांड देयर बिजनेस। समझ में आ रहा है? सो एफबी विल बी वन ऑफ द मैनेजिंग, राइट, पार्टनर इनटू द बिजनेस।
Example, Hyundai India Limited came to India through FDI route by creating 100% subsidiary. Then these are some of the examples. Bharti Airtel का है, Idea Vodafone का है, ठीक है. You can go through that. That is not in textbook, but ये मैंने आपके लिए दी है. So I will take you to the website. तो उसमें और clearly लिखा है. Let me check. ठीक है. So FDI उनकी वेबसाइट है. I need to check. I need to check. वो वेबसाइट कौन सी है? Okay. I think this should be the website. हाँ देखो. FDI इंडिया बोल के एक वेबसाइट है. यहाँ पे देखो. Explore the lines. एक मिनट. अरे वो फ्लिप होता रहेगा. एक सेकंड. FDI पॉलिसी लेता हूँ मैं. Yes. हाँ. FDI entry routes. देखो क्या लिखा है. There are two routes. ध्यान देना. The government of India has established two routes through which foreign investors can make investment into Indian economy. Two routes. The routes for the FDI are automatic route and the government route. A thorough understanding of these two routes is required in terms of foreign investment as the government has divided the various sectors among them. कोई सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना तो डायरेक्टली करो, हमें हमारे पास मत आओ. गवर्नमेंट बोलती है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आप डायरेक्टली करो, हमें बीच में मत लो, हमारे अप्रूवल की जरूरत नहीं. बट इन सम सेक्टर्स अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इन दैट केस ऑब्वियसली यू हैव टू सीक द गवर्नमेंट्स अप्रूवल. गवर्नमेंट रूट क्या लिखा है देखो. एज द नेम सजेस्ट the route for the foreign investment that has government involvement is called as government route. Government के approval के through वो होगा. To make foreign investments in the sector that come under government route, foreign investors are required to first take approval from the government, as without approval the foreign entities will not be able to make investments in India. They have to first take the approval. The foreign investors have to submit a proposal to respective administrative ministry like मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट. जो भी मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट रहेगा उसको कंसर्न मिनिस्ट्री. अगर आपको टेलीकॉम सेक्टर में करना है तो आपको टेलीकॉम मिनिस्ट्री के पास जाना होगा. एग्जांपल राइट. देन दे हैव टू गो टू द कंसर्न मिनिस्ट्री हु इज रिस्पांसिबल फॉर ग्रांटिंग परमिशन एंड देन इन्वेस्टमेंट्स कैन बी मेड. व्हाट इज ऑटोमेटिक रूट? The sectors that come under automatic route of the FDI do not require any approval of the government, right? The investors can make the investment without taking any approval from the government through automatic route, but revised policies must be checked before making investments to avoid confusion. तो आपने चेक करना चाहिए एक्चुअली आप जिस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो वो ऑटोमेटिक रूट के अंदर आता है इंडिया में या राइट गवर्नमेंट रूट अप्रूवल रूट के अंदर आता है. ठीक है. अब देखो और क्या लिखा है. एक सेकंड. यही टाइप्स ऑफ एफडीआई. ध्यान देना. राइट. हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट देख रहे हैं. टू फर्दर अंडरस्टैंड द न्यूसेंसेस ऑफ द एफडीआई, लेट मी इधर था टाइप्स एंड मेथड्स. राइट. हॉरिजॉन्टल एफडीआई मतलब क्या? इन दिस टाइप ऑफ एफडीआई parent companies like initiatives the same business model in the another country, same business model in the another company, right? The goods and services that are manufactured abroad are mostly similar to the goods and services that are manufactured in the home country, right, of the company.
The term horizontal is given to this type of FDI because similar operations of the company are carried out in the another country. Vertical FDI matlab this type of FDI is known as the export platform foreign direct investment in which exports are sent back to the home market. मतलब या तो आप इनपुट एक्वायर करोगे और एक्सपोर्ट करोगे इन लाइक जो होस्ट कंट्री की आपने इन्वेस्ट किया ना दे विल एक्वायर इनपुट्स एंड आपको देंगे या यू विल सेल देम द आउटपुट और आपके लिए सेल करेंगे राइट द मेन कंट्रीब्यूटर of this type of FDI is increase of the trade blocks that have lower internal अच्छा ठीक है ये आपको नहीं पता है तो ये बोल के भी फायदा so platform FDI that is conglomerate FDI in this case of platform FDI a business gets expanded to another country but aim of the expansion is to take output from the foreign country and to export it to the third country आपके मॉडल में क्या लिखा है कि किसी अदर एक्टिविटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो उसको प्लेटफॉर्म या कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई बोला जाता है द वेज ऑफ एफडीआई मेथड्स मर्जर्स एंड एक्विजिशन यू enter into joint venture starting subsidiary abroad right and getting voting stocks in the foreign company so these are methods of FDI या तो आप कोई किसी कंपनी को एक्वायर करो उनके साथ मर्ज करो लाइक वोडाफोन and Idea merged. It was a FDI. Vodafone is a foreign company. It merged with Indian company Idea. Right? Idea. They have to take approval of the government. It was 100% FDI के अंडर था वो. So that is FDI. दूसरा है joint ventures. Hero and Honda. Japanese company Honda. Hero Indian companies. They enter into joint venture. So that is a FDI. Right? दूसरा है Maruti and Suzuki. Maruti is Indian company. Suzuki is Japanese company. They collaborated, they came into joint venture आज भी है right starting subsidiary right आपने एक subsidiary यहाँ पे open की है Indian market में और getting voting stocks in the foreign company like FB investing into Jio so these are methods by which right FDI बनता है मुझे ये चाहिए था वो उन्होंने दिया होगा let me check sectors let's see एक उनकी लिस्ट है वो लिस्ट मुझे दिखाने दी लेट मी चेक एक लिस्ट थी वो मुझे एक सेकंड लेट मी अगेन एफडीआई सेक्टर वाइज लिखता हूँ यस ये देखो ठीक है ध्यान देना दिस इज ए लिस्ट देखो क्या लिखा है एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर एफडीआई चाहिए 100% लिमिटेड आप 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फॉरेन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट अप टू 100% एंड दैट टू अंडर ऑटोमेटिक रूट कोई गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं प्लांटेशन सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट माइनिंग में 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट राइट मतलब अप टू 100% आप इन्वेस्ट कर सकते हो नहीं माइनिंग वगैरह वो अलग अलग सेक्टर है राइट वो माइनिंग में भी अलग अलग रहेंगे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस राइट 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट राइट रिफाइनिंग वगैरह डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 100% एफडीआई बट 100% का बाइफर्केशन कैसे ध्यान देना अगर आपको अप टू 14% इन्वेस्टमेंट करनी है कोई डिफेंस कंपनी है
दे आर मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस प्रोडक्ट्स, आप उनमें इन्वेस्ट करना है किसी फॉरेन इन्वेस्टर को, he can invest up to 100%. However, 49% under automatic route. 49% इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं टोकेगी, बट मोर एंड ओवर एंड अबव 49% रहेगा तो आपको गवर्नमेंट रूट के थ्रू जाना होगा, अबव 49% अंडर गवर्नमेंट रूट, राइट। देन मतलब कभी कभी वो बाइफरेट होता है, अप टू 49% ऑटोमेटिक रूट, उसके आगे गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। ब्रॉडकास्टिंग 100% ऑटोमेटिक, राइट, ऑटोमेटिक। देन like direct to home services, example direct to home services like cable networks, etc., mobile TV, etc. Broadcasting 100% automatic route. Broadcasting content services 14% है, broadcasting content services 14%, but that through government route, ठीक है। प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया में इन्वेस्ट करना है, सपोज टाइम्स ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट करना है, सक्का में इन्वेस्ट करना है, लोक सत्ता में इन्वेस्ट करना है, एग्जाम्पल, राइट। द हिंदू, हिंदू में इन्वेस्ट करना है, प्रिंट मीडिया में इन्वेस्ट करना है, तो you can invest up to 26%, right, and that too through government, because print media को foreign investors can influence, तो इसलिए गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, right. Then civil airports, civil aviation airports 100% automatic, no government intervention. Civil aviation, right, air transport services, air transport services 100%, but up to 14% automatic and above that government, ठीक है। देन जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, मतलब आपको क्लिक होगा, आपको ये याद नहीं रखना है, पहले ये समझ लेना। सिविल एविएशन 100% ऑटोमेटिक, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, टाउनशिप, हाउसिंग, बिल्ट अप इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 100% लाइक टाउनशिप वगैरह के लिए खाली, राइट, 100% ऑटोमेटिक। देन industrial parks, SEZ example, industrial parks, new and existing 100% automatic. Then satellites, etc., 100% government. Private security agencies, right, 74% investment कर सकते हो, 49 under 49% up to 49%, right, automatic, and 49 के आगे up to 74% government. Telecom sector 100%, मैंने बोला था एफडीआई, मैंने ये बोला था, देखो वोडाफोन एंड आइडिया, उनका जो मर्जर हुआ, सो वोडाफोन इज अ फॉरेन इन्वेस्टर, आइडिया इज अ इंडियन कंपनी, जब इनका मर्जर हुआ तो दैट वाज 100% ना, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम they have to take the approval of the government, Vodafone had to take the approval of the government, 100% automatic up to 49%, above that government. कैश एंड कैरी होलसेल ट्रेडिंग, ई कॉमर्स एक्टिविटीज, आप देख सकते हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर 100% इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, लाइक रेलवे लाइन डालना वगैरह, वो सब ऑटोमेटिक। देन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर, देखो बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग 74%, 14% अंडर ऑटोमेटिक रूट, एंड अबव दैट अप टू 74% अंडर गवर्नमेंट रूट। बैंकिंग पब्लिक सेक्टर, एसबीआई में इन्वेस्ट करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्ट करना है, आईडीबीआई में इन्वेस्ट करना है, अगर आपको कंट्रोलिंग लॉन्ग लास्टिंग इंटरेस्ट रेट करना है तो अप टू 20% ही कर सकते हो, एंड दैट टू गवर्नमेंट रूट। क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, इंश्योरेंस, देखो यू कैन इन्वेस्ट इनटू इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया अप टू 14%, दैट टू ऑटोमेटिक, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। देन पेंशन सेक्टर, पावर एक्सचेंजेस, देयर आर मेनी, आप जितना देखोगे उतना कम, ठीक है। सो दीज आर, राइट, ऐसे होता है कि हर सेक्टर का एक कुछ आपको पता होनी चाहिए। अगर एज अ फॉरेन इन्वेस्टर यू मस्ट नो कि इंडिया में कहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट अलाउड है। ये लिस्ट में से कोई चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिशन, ये मॉडल में भी इनमें से कुछ दी है, मैंने लिस्ट प्रॉपर एफडीआई की वेबसाइट से ली है, बट इसमें से जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो मैं टिक मार करके दूंगा। किस सेक्टर्स में या किस एक्टिविटी में एफडीआई इज नॉट परमिटेड in India, foreign investment is prohibited in the following sectors. Lottery business, this is given in the module. Lottery business में FDI is not, right, allowed, including government or private lottery,
ऑनलाइन लॉटरीज एक्सेट्रा। गैम्बलिंग में, गैम्बलिंग एंड बेटिंग इंक्लूडिंग कसिनोज, गोवा में जाते हो कसिनोज वगैरह होते हैं, वहां पे राइट दे आर 100% राइट राइट इंडियन रहेंगे, उनमें कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी। चिट फंड्स, निधि फंड्स, ये मॉड्यूल में दिए। ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, टीडीआरस। टीडीआरस आपको शायद से पता नहीं होगा। एग्जांपल मैं बोलता हूँ, सपोज एग्जांपल, सपोज एक एरिया है और वहां पे एयरपोर्ट बनने वाला है, तो उसके ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर, सपोज 2 किलोमीटर एरिया में अब एयरपोर्ट बनने वाला है, तो फ्लाइट्स लाइक टेक ऑफ और लैंडिंग प्रॉब्लम ना आए ना, तो वहां पे क्या करते हैं कि वहां पे 1-2 किलोमीटर के अराउंड कोई भी बिल्डिंग, सपोज बोला है कि 10 फ्लोर्स के ऊपर नहीं रहेगी। एयरपोर्ट के 2 किलोमीटर अराउंड गवर्नमेंट ने बोला है कोई भी बिल्डिंग 10 फ्लोर से ऊपर नहीं रहेगी। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ का एफएसआई तो ज्यादा है, एफएसआई ज्यादा है, यू कैन कंस्ट्रक्ट 15 स्टोरी बिल्डिंग, 20 स्टोरी बिल्डिंग, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एयरपोर्ट गवर्नमेंट हैज रिस्ट्रिक्टेड इट 10। तो गवर्नमेंट बोलती है सपोज एफएसआई के हिसाब से यू कैन कंस्ट्रक्ट 15 फ्लोर, यू कैन कंस्ट्रक्ट 15 फ्लोर, बट जस्ट वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू 10 फ्लोर। ये जो आपका लॉस हुआ है 5 फ्लोर का, ये आपके पास राइट रहेगा, आपके पास राइट रहेगा कि यू कैन सेल दिस राइट ऑफ द 5 फ्लोर टू एनीवन। मतलब यहाँ पे मेरी एक बिल्डिंग है, मैंने 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई है, बिकॉज आई कैन नॉट कंस्ट्रक्ट राइट मोर देन 10 फ्लोर, बट एफएसआई के हिसाब से मैं वहां पे 15 फ्लोर की बिल्डिंग कर सकता हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ एयरपोर्ट मुझे 5 फ्लोर कम करने पड़े, तो गवर्नमेंट मुझे राइट देती है, टीडीआर बोलते हैं उसको, जो मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। कहाँ पे, दूसरे पुणे के दूसरे लोकेशन में एक बंदा 20 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहा है, वहां पे एफएसआई 20 फ्लोर का ही है, वहां पे 20 फ्लोर की बना रहा है, ही वॉन्ट्स 25 फ्लोर बिल्डिंग, वो चाहता है कि उसको 25 फ्लोर की बनानी है, तो एक्स्ट्रा 5 फ्लोर का राइट मैं उसको सेल कर सकता हूँ। मैं बोलूंगा मेरे पास 5 फ्लोर बनाने का राइट है जो गवर्नमेंट ने मुझे दिया है, आई विल सेल दिस राइट टू यू। तो तू भले ही वहां पे 20 फ्लोर के बनाने का राइट है, स्टिल यू कैन गो फॉर 25 फ्लोर। तो ये जो राइट है ना मेरे पास, 5 फ्लोर जो कंस्ट्रक्ट करने का राइट है, जो मैं कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ कोई गवर्नमेंट ने मुझे रिस्ट्रिक्शन डाला है, आई कैन सेल दिस राइट। तो गवर्नमेंट बोलती तेरा नुकसान नहीं होगा, तू खाली 5 फ्लोर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, बट आई विल गिव यू राइट। गवर्नमेंट बोलती वी विल गिव यू राइट, जो राइट तुझे किसी और को सेल कर सकता है, जिसको 5 फ्लोर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट करनी है ना, उसको तू सेल कर। तो वो जो राइट है उसको बोला जाता है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। सो आई कैन ट्रांसफर द टीडीआर एंड मुझे उससे पैसे मिलेंगे, तो उसमें मेरा लॉस रिकूप हो जाएगा। और इसको भी काम हो गया, उसको 25 फ्लोर बनाने थे, एफएसआई के हिसाब से 20 कर सकता था, ही परचेस टीडीआर फ्रॉम मी, उसका भी काम हो गया। सो ऐसे ट्रेडिंग, ये जो ट्रेडिंग हो रहा है, मैं उसको टीडीआर सेल कर रहा हूँ, वो मेरे से परचेस कर रहा है, ऐसे जो टीडीआर, ऐसे बहुत लोगों को टीडीआर चाहिए होता है, तो प्राइस इंक्रीज होती जाएगी टीडीआर। समझ में आ रहा है? तो ये ट्रेडिंग में एफडीआई नहीं हो सकती। रियल इस्टेट बिजनेसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फार्म हाउसेस, उसमें नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स, राइट, सिगारेट, टोबैकोस और टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, उसमें एफडीआई इज प्रोहिबिटेड। एक्टिविटीज एंड सेक्टर्स नॉट ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर, लाइक ऑटोमिक सेक्टर में एफडीआई प्रोहिबिटेड है। रेलवे ऑपरेशंस में, रेलवे स्टार्ट करना, खुद की रेलवे स्टार्ट करना, उसमें एफडीआई, रेलवे ऑपरेशंस में एफडीआई अलाउड नहीं है, राइट। लास्ट वन, फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशंस इन एनी फॉर्म including licensing for franchises, trademarks, brand name, management contract is also prohibited in the lottery business and gambling and betting activities. ये लॉटरी, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, इसमें कोई भी प्रकार से राइट एफडीआई नहीं आ सकता, ना ही आप लाइसेंस दे सकते हो, आप ट्रेडमार्क यूज करने को अलाउ कर सकते हो, यू अलाउ देम टू यूज योर गुडविल वगैरह, कुछ भी नहीं, ना ही इन्वेस्ट कर सकते हो, ना ही यू कैन ट्रांसफर योर नेम एंड एक्सेट्रा। So these are the sectors
जहाँ पे एफडीआई इन इंडिया इज प्रोहिबिटेड। तो ये पता ही होनी चाहिए एमसीक्यूज के लिए। कौन कौन से? लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, बेटिंग, चिट फंड्स, निधि फंड्स। आई थिंक सर ने आपको सिखाया होगा चिट फंड निधि फंड इन योर कंपनी अकाउंट, कंपनी लॉ में। चिट फंड्स, निधि फंड्स, राइट। टीडीआर राइट्स, टीडीआर, टीडीआर मतलब क्या? मेरे पास जो राइट है मैं कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया उतना। तो एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, एक सेकंड ना, एक सेकंड।